Hello everyone, this is Safahan guys. Uh, let's do October-November 2021, variance 21. Um, Sulfides are compounds that contain sulfur but not oxygen. Okay. Carbon disulfide CS2 is a volatile liquid at room temperature and pressure. State the meaning of volatile, which evaporates easily at room temperature and pressure. Evaporates easily at room temperature. Draw a dot and cross diagram of CS2 molecule. CS2 molecule. So first of all, ये ज़हन में रखें कि carbon is the central atom because it can hold sulfur atoms very easily. Next is carbon belongs to group 4. I mean 14. So it has 4 valence electrons. All right, sulfur. Sulfur belongs to group 16. It has 6 valence electrons. And one more thing, CS2 is a molecule which exhibits double covalent bond. So CS2 exhibits double covalent bond. That's what you need to remember in order to make dot and cross diagram. ये आपका CS2 है. That is your carbon. And obviously beta ये sulfur को hold करेगा 2 sulfur atoms को. This is the first one. And this is the second one. Now, sulfur has 6 valence electrons. 1, 2, 3, 4. All right. And sorry, carbon has 4 valence electrons and sulfur has 6. Sulfur के 6 electrons को हम cross से represent कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Suggest the bond angle in a molecule of CS2. Actually, the CS2 structure is like this. And according to my lecture, it has a linear geometry. All right. And because of this, it has an angle of 180 degree. आपको याद है ना डबल हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेते हैं. तो कार्बन के अराउंड 2 सिंगल बॉन्ड है. सबसे पहले वाला ऑर्बिटल s का होगा, दूसरा वाला ऑर्बिटल p का होगा. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp with linear geometry and an angle of 180 degree. That's what we have done in the class. Okay. CS2 is a liquid under room condition while CO2 is a gas. Explain what causes the difference in the physical properties between CS2 and CO2. Obviously CS2 में number of electrons ज़्यादा होंगे. Strong instantaneous dipole induced dipole forces. तो हम कहेंगे CS2 contain more number of electrons CS2 contain more number of electrons than carbon dioxide. So CS2 exhibits strong
temporary induced dipole force than carbon dioxide molecule. Okay. Okay, the next is define enthalpy change of combustion, and in this हम combustion करवा रहे हैं CS2 की in the presence of oxygen. It is converting into carbon dioxide and sulfur dioxide. The enthalpy change of combustion is easy. Enthalpy change when 1 mole of compound is burned in the presence of excess oxygen all right. To give carbon dioxide and water. In fact, जरूरी तो नहीं है कि अगर हाइड्रोजन की कंबशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं मिलेगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज फाइन. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड की कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए मैं स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. इस बर्न्ड फुली लिख देते हैं यहाँ पर in the presence of excess oxygen. Okay. Next, the table shows the enthalpy changes of formation of CS2, CO2, and SO2. The formation enthalpy change given है. Use the data in the table to calculate the enthalpy change of combustion of CS2 in kilojoules per mole. Show your working. Okay, तो हमारे पास equation है combustion of CS2. हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में. ओके, तो यहाँ 2 मोल आ जाएंगे और यहाँ 3. एंड ऑब्वियसली मुझसे कह रहे हैं कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करो. ओके, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, इसलिए हैसल और साइकिल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगा. आई नीड कार्बन, आई नीड सल्फर. ओके, हम सब जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी. CS2 हो जाएगा आपके पास प्लस SO2 आपके पास हो जाएगा -297 टाइम्स 2. आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह रहे हो लीजिए. ऑब्वियसली ये भी क्लॉकवाइज में, ये भी क्लॉकवाइज में, इन दोनों की वैल्यूज को मैं लूंगा प्लस. ये क्लॉकवाइज में नहीं है, इन दोनों की वैल्यूज को मैं लूंगा माइनस एंड इक्वल्स टू 0 करूंगा, तो इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा. तो डेल्टा HC प्लस 89.7 माइनस -394 minus -297 times 2 equals to 0. तो यहां से डेल्टा HC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? लेट मी चेक. 297 multiplied with 2 plus 394 988 plus 89.7, ये हो जाएगा 177.7. तो जब ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 177.7 kilojoules per mole. ऑलराइट,
तो मैं इसको राउंड ऑफ करके दे सकता हूँ -1080 kilojoules per mole. I hope it makes sense to you. In the next part of the question, hydrogen sulfide gas is slightly soluble in water. It acts as a weak acid. इसका मतलब it donates its proton in aqueous medium. All right. State the meaning of the term weak acid. It partially ionizes in aqueous medium. Partially ionizes in aqueous medium. Okay. Now the next is give the formula of the conjugate base of H2S. सबसे important बात conjugate base. आपको याद है conjugate base मैंने क्लास में क्या बताया? Conjugate base negatively charged होता है. ये पहचानने का तरीका हो गया. ठीक है. और दूसरी बात proton acceptor होता है because proton that is hydrogen ion are positively charged. Proton acceptors. Okay. So give the formula of the conjugate base of H2S. तो भाई अगर मैं H2S को देखूं तो मेरे पास H2S ये है. अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस HS माइनस में चार्ज्ड आयन जो है ना ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. इन द नेक्स्ट पार्ट H2S reacts slowly with oxygen dissolves in water. Okay. Then फिर आपके पास है the reaction is represented by the following equation. Explain with reference to oxidation numbers why this reaction is redox reaction. Redox का मतलब when oxidation and reduction takes place simultaneously, यानी एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट के साथ एंड redox. अब आप नोट करें यहाँ पर H2S है. इस H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं. बाय द वे ये भी मैंने डिटरमिन करके दिया आपको क्लास में. सल्फर को X लीजिए, हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, 2 into 2 कीजिए बिकॉज 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वल्स टू 0, देन X इक्वल्स टू -2. तो यहाँ पर सल्फर -2 है, वेयर एज यहाँ पर सल्फर 0 हो गया. इसका मतलब सल्फर -2 से 0 जा रहा है. इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है और increase in oxidation state is basically oxidation. Okay. On the other hand आप नोट कीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो वो न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन -2 है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है इसलिए क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के अंदर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. सो सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, व्हिच इज व्हाई रिएक्शन इज रीडॉक्स. तो हम यहां पर मेंशन करेंगे सल्फर चेंजेस बल्कि सल्फर एग्जिबिट इंक्रीज in oxidation state from -2 to 0 while oxygen exhibit decrease in oxidation state from 0 to -2. Okay. This means sulfur is oxidized and oxygen is reduced.
Okay. Oh, that's the question actually. The compound arsenic sulfide is common mineral. Arsenic sulfide is heated strongly in air. It forms a mixture of products. A sample containing 0.198 gram of arsenic sulfide is placed in 0.1 dm cube of pure oxygen. And excess, okay, oxygen excess के अंदर है. That is the volume. And in excess, and also you have arsenic sulfide mass, okay, in a reaction chamber connected to a gas range at room temperature. Okay, room temperature है हमारे पास. The reactants are heated until no further change is observed. Okay, the products are then allowed to cool at room temperature. Calculate the volume in dm cube of gas present at the end of the experiment. At the end of the experiment, the molar volume of gas is 24 dm cube per mole. Under these conditions, assume that the pressure is constant throughout the experiment. Show your working. How much marks do? Oh, 4 marks. Oh my goodness, that's a lot. Okay. No issue. So periodic table is case इस पेपर के अंदर डेटा बुकलेट के अंदर गिवन होगा, right? So first of all, take out the MR of arsenic sulfide. So arsenic sulfide का MR is going to be 246.1. Okay, so by using this value and this, I can find the moles of arsenic sulfide. So you take a 0.198 divided by 246.1. So ये मेरे पास moles 0.198 divided by 246.1 is going to be 8.045. तो मैं इसको लिख दूं 8.05 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. Now according to the equation, arsenic sulfide और carbon sulfur dioxide में 2:6 का ratio है. Okay. Now by using this, arsenic sulfide and sulfur dioxide has a molar ratio between 2 and 6. I think so. यही equation है. Yes. तो अगर आपने यहाँ पर 8.05 into 10 to the power minus 4 moles कैलकुलेट किए हैं, तो moles of sulfur dioxide कितने हो जाएंगे आपके पास? Moles of sulfur dioxide. तो मैं इनको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा. मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. सो आई विल गेट 2.413 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, now I know the volume of, I know the moles of SO2. I can find the volume of SO2 by volume. तो volume into 24 dm cube, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0579 0.0579 dm cube, 0.0579 dm cube of sulfur dioxide. क्योंकि मुझे वॉल्यूम इन dm cube of gas present डिटरमिन करना था एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो मुझे पता चल गया कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इतना गिवन होगा. मसला ये है कि इस इक्वेशन के अंदर दो गैसेस थी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. तो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ आफ्टर द रिएक्शन वो मालूम कर लिया, बट ऑक्सीजन गैस कितना रिएक्ट होगी, कितना बच जाएगा वॉल्यूम, ये भी तो फाइंड आउट करना है. So let's talk about this stuff. And again,
आर्सेनिक सल्फाइड और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 2:9 का है। ओके, हमारे पास मोल्स कितने हैं? 8.05 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके पास? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गाइस आ रहे हैं मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 9, 8.05 exponent -4 into 9 divided by 2, so I'll get 3.6225 into 10⁻³ moles, right? Now if I use these moles, I can find the volume of oxygen, right? तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 dm³ से। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंटू 24 इज गोइंग टू बी 0.08694 0.08694 dm³। इशू इस, अगर आपको याद हो, एग्जामिनर ने मुझसे कहा था कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 0.100 dm³ है और ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है। तो इनिशियली इतना वॉल्यूम था ऑक्सीजन का, उसमें से इतना रिएक्ट हो गया है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो बच कितना जाएगा मुझे ये भी निकालना है। सो वॉल्यूम of oxygen remain after the reaction, तो 0.100 minus 0.08694, तो ये हो जाएगा 0.100 माइनस दिस, सो मेरे पास आ जाए 0.01306 dm³। Okay, now we need to find out the total volume after the reaction. Total volume after the reaction. So after the reaction, oxygen मेरे पास कितना है? 0.01306 dm³, और सल्फर डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ था? 0.0579। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.0579, so it's going to be 0.07096 0.07096 dm³। अगर मैं इसको राउंड अप करके लिखूं तो ये हो जाएगा 0.071 dm³। okay, I hope that the whole steps 4 marks हैं। show your working कह रहा है तो मैंने एक एक स्टेप शो किया आपको, ठीक है। Now, in the next part of the question, examiner is asking, state the environmental consequences of releasing sulfur dioxide into the atmosphere. So I told you in the class that sulfur dioxide is an acidic gas. It causes acid rain, which corrodes building and damages limestone work. Okay. So आप बता दीजिए कि sulfur dioxide causes acid rain. Now, sulfur dioxide can be removed from the air by reacting it with NaOH. Construct an equation for the reaction of SO2 with NaOH, include state symbols. Okay. सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास, अगर आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम सल्फाइड में एंड वाटर में। ये इक्वेशन हमने आपको करवाई है, ठीक है ना, क्लास में। अब मसला ये कि सल्फर डाइऑक्साइड होगी गैस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा एक्वस मीडियम में यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट एक्वस होगा, और वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ऑलराइट, that's a very lengthy question. Okay, that's the end of the first question. My goodness. Okay, let's start with the second question. The reaction scheme shows some reactions of calcium. Okay, ये स्कीम हम बाद में देखेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ ये स्कीम सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। फिर कहीं अगर मुझे जरूरत पेश आएगी तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लूंगा आपके साथ। A part 1, reaction 1 produces calcium nitrate and one other product. Identify the other product. Reaction 1, आप नोट करें,
कैल्शियम को आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब एक रिएक्टर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट का नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, और आप जानते हैं कि उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो इसका मतलब हम यहां से क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस रिएक्शन का नाम बताइए, तो मैं इसको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एक मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर रहा है द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन for the thermal decomposition of calcium nitrate. That's what we have done in the class so many times. तो कैल्शियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करेंगे, ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड ऑक्सीजन गैस में। ओके, now the next is state the trend in the thermal stability of group 2 nitrates down the group। क्योंकि वो ट्रेंड कह रहा है, तो thermal stability of group 2 nitrates increases, तो thermal stability increases down the group 2। okay, in reaction 3, इसमें रीजन नहीं दे सकते क्योंकि 1 मार्क है, सिर्फ ट्रेंड पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ट्रेंड बताया। 2 मार्क्स होते तो शायद मैं रीजन दे देता, ठीक है। in reaction 3, excess carbon dioxide is bubbled through water containing calcium carbonate. A solution of calcium hydrogen carbonate forms. Construct an equation for the reaction 3. Let's talk about reaction 3. Okay, okay. दो चीजें हैं। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में कंबाइंड होंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, तो ये बन गया आपका कार्बोनिक एसिड। और अब ये कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंड वाटर में। ओके, ठीक है, बल्कि वाटर तो आपने यूज कर लिया है, तो ये बन जाएगा आपके पास, सही है। बात समझ में आई। ये टेक्निकल थोड़ा सा एरिया है कि अगर वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर किसमें कन्वर्ट होंगे, कार्बोनिक एसिड में। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये इस कार्बोनेट से रिएक्शन करके इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो हमसे वो पूछ रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन तो बहुत आसान है, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, वाटर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए और कन्वर्ट करवा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो रिएक्टेंट्स एग्जामिनर ने दी थी, प्रोडक्ट्स भी बताई थी, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। ओके, डिस्क्राइब हाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, सॉइल की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, 1 मार्क। नेक्स्ट, in reaction 4, calcium carbide is formed from calcium oxide. Calcium carbide contains C2 minus anion. Each carbon in C2 minus is sp hybridized. Describe how sp hybridized orbitals are formed. That's called hybridization. Okay, let's talk about reaction 4 first. Okay, okay. सही है, ये रिएक्शन 4 हो रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड बना रहे हैं। ओके, ये बेसिकली कार्बाइड आयन है, तो कार्बाइड आयन इस तरह से लिख लेते हैं। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 4, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, 1 2 3 4। दूसरे वाले कार्बन के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 1 2 3 4।
सही है। एंड ऑब्वियसली इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा जो कि कैल्शियम से आया होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा जो कि कैल्शियम से आया होगा। सो ये मिलकर हो जाएंगे -1 चार्ज, ये मिलकर हो जाएगा -1 चार्ज, ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 माइनस चार्ज। ओके, तो आप इनको लहदा लिखने के बजाय एक साथ लिख दीजिए यहाँ, सही है, ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ C22 -Ni। ओके, दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा बेहतर अंदाज से कि ये कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। दूसरा वाला कार्बन एटम है, उसकी भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ये हो जाएगा 1 2 3, दिस वन इज 4। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 2+, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन किया जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन किया जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर भी 2 माइनस चार्ज आया। तो ये माइनस चार्ज इधर भी है, माइनस चार्ज इधर भी है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 2 माइनस। ओके, हाउ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। यार sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है ना, मिक्स हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। ऑलराइट, सो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप होते हैं आपस में, एंड उसमें s ऑर्बिटल भी ओवरलैप करता है, p ऑर्बिटल भी ओवरलैप करता है, ठीक है। सो इन sp hybridized orbitals, नहीं स्टेटमेंट कुछ बेहतर लिखते हैं, when s and p orbitals are overlapped together, then sp hybridized orbitals are formed। ओके, उन्होंने खुद कह दिया कि एक s और एक p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। Sketch a diagram to show sp hybrid orbitals can form a sigma bond। तो अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में आपको एग्जांपल दी है sp हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, अगर मैं आपको याद करवाऊं, वो एग्जांपल थी hf की, है ना। ओके, वो डायग्राम कौन सी थी, hf की। इसमें क्या हो रहा था कि एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था विच हैज अ स्फेरिकल शेप, और फ्लोरीन का जो है वो डम्बल शेप स्ट्रक्चर था। ये आपस में कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो रहे थे, sp हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, याद आया। ओके, तो ये मेरे पास ये s ये p, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, अब वो कह रहे हैं कि 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज करो। तो ये तो एक है, इसी तरह का एक और भी होगा, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट वन हमारा, सही, और ये हमारा सेकंड होगा। ओके, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे हेड टू हेड, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में ये एक टॉफी शेप स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉर्म कर लेंगे लाइक दिस। ओके, एंड आई थिंक यू नीड टू रिमेम्बर दिस, और ऐसी डायग्राम हमने क्लास में भी बनवाई है आपको, ठीक। सो ये बेसिकली आंसर जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर आपने क्लास में
न्यूक्लियस मेंशन किए थे तो यहाँ करेंगे मेंशन, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इस वाले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहाँ होगा, इन दोनों का न्यूक्लियस यहाँ होगा, तो आप यहाँ पर न्यूक्लियस भी मेंशन कर सकते हो। ओके, ये हमने क्लास में पढ़ाया था आपको HF के केस में, हमने उसी को आपस में कंबाइन करके बना के दिखाया है। सही है, और ये भी आपके पास है, हमने डिस्कशन की हुई है इसकी। The flow chart shows some reactions of calcium carbide. Okay, reaction 5 can be used to prepare ammonia. ये रहा reaction 5, इसमें कैल्शियम साइनामाइड है, वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया फॉर्म कर रहा है। ओके, ये इक्वेशन आ गई है आपके पास। कैलकुलेट द मिनिमम मास इन टन्स ऑफ कैल्शियम साइनामाइड that is required to produce this much tons of ammonia. Show your working. 1 ton is 1 million gram. अच्छा, उन्होंने मुझे कन्वर्जन तो दे दी है, बट जाहिर सी बात है मेरे पास 2 मार्क्स का पार्ट है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना, तो मैं ये जो टन्स हैं इन्हीं को मैं यूज कर लूंगा, ग्राम में कन्वर्ट नहीं करूंगा, और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसको मैं स्ट्रेट अवे टन्स में ही लिख दूंगा। कैसे, जरा देखिए, मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। We know the mass of ammonia, we know the MR of ammonia, तो दोनों को यूज करूंगा तो बेटा मुझे मोल्स ऑफ अमोनिया मालूम हो जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट मोल्स ऑफ अमोनिया। ये हो जाएगा 1.50 इंटू 10 टू द पावर 6 टन्स। इसको डिवाइड कर दो अमोनिया के MR से, विच इज 17, तो ये हो जाएगा 1.50 exponent 10 to the power 6 divided by 17, so it's going to be 88235.294 moles. Okay, ये मेरे पास moles हो गए। Now in the second step, I need to find out the mass of calcium cyanamide. So we need to look at the equation for the molar ratio between ammonia and calcium cyanamide. And according to the equation, it has 1 mole, it has 2 mole. That indicates कि मैं बहुत simple तरीके से calcium cyanamide के moles find out कर सकता हूँ। ये अमोनिया है आपके पास, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर आपने 88235.294 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ कैल्शियम साइनामाइड कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ कैल्शियम साइनामाइड is going to be divided by 2 this value, so 44411 7.647 moles. Okay, मैं सबसे पहले MR कैलकुलेट करूंगा साइनामाइड का। कैल्शियम साइनामाइड का MR कितना होगा? कैल्शियम का MR होता है 40.1, कार्बन का होता है 12.0, नाइट्रोजन का होता है 14.0। तो यहाँ से कैल्शियम साइनामाइड का MR 40.1 प्लस 12 प्लस 14 is going to be no 14 times 2 guys, because calcium cyanamide में 2 होता है ना, 14 times 2. Okay, hold on a second. Oops, 40.1 plus 12 plus 28 is going to be 80.1. Okay, 80.1. So मेरे पास जो मोल्स हैं मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा MR से, तो मेरे पास मास ऑफ कैल्शियम साइनामाइड आ जाएगा। तो मैं 80.1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 44117.647 से। So multiply 44117.647. So it's going to be 353,823.525 ग्राम। अब जाहिर सी बात है इसको हम ऑब्वियसली ये मेरा आंसर टन्स ग्राम में तो नहीं है, टन्स में ही है। ओह माय गॉडनेस, टन्स, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं आपको बात समझाने के लिए। 3.5 3 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 6 1 3.53 into 10 to the power 6 tons. Okay, next is
draw the structure of the organic products formed in the following reaction. सबसे पहली बात ब्रोमीन है, आप साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CN। वैसे तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, but since we have increased one carbon atom, which is why this step is also called a step up reaction, okay? और अगर मैं साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करूं हीट अंडर फ्लक्स, तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो हम यहाँ लिखेंगे CH3 CH2 COOH। उसके बाद हमारे पास है कीटोन, 3 कार्बन एटम का कीटोन इज प्रोपेनॉन। अगर मैं प्रोपेनॉन को सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCN से रिएक्शन करवा रहा हूँ तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, और साइनोहाइड्रिन की मैंने कंडीशन बताई हुई थी कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसी के साथ एक CN भी अटैच कर दीजिए, ओके? आपको याद आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि OH और साइनाइड एक ही कार्बन एटम से अटैच होंगे तो उसको हम साइनोहाइड्रिन का नाम देंगे, और ये आपके पास क्या है? प्रोपेनॉन, ठीक है? और यहाँ रिएक्शन कौन सा हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके? और वैसे पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके? और इसको क्या कहते हैं? SN रिएक्शन, जिसको मैंने स्टेप अप रिएक्शन भी बोला है, ठीक है? कार्बन एटम जब भी इंक्रीज होगी स्टेप अप रिएक्शन होगा। तो बच्चे वो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर कार्बन एटम तो यहाँ भी इंक्रीज हुई, तो क्या मैं इसको भी स्टेप अप रिएक्शन बोलूंगा? कह सकते हो आप, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इसलिए हम हमेशा उसको प्रायोरिटी देंगे लिखने के लिए, ओके? Let's start with question number 3. Phosphorus is a reactive period 3 elements. Phosphorus has several allotropes. मैंने क्लास में बताया था कि रेड phosphorus भी होता है, व्हाइट phosphorus भी होता है. Details of 2 allotropes are given. This is white phosphorus, this is red phosphorus. और अगर आपको याद हो, मैंने व्हाइट phosphorus का भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है और रेड phosphorus का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, और मैंने दोनों से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन शेयर की है स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में, ओके? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्यों अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि जो P4 है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मैंने ट्रिक समझाई थी आपको क्लास में, मैंने कहा था कि जी आप इस तरह से बनाइए, सही है? हम सब जानते हैं एक फॉस्फोरस रह गया है, और हम ये भी जानते हैं कि ईच फॉस्फोरस हैज 3 बॉन्ड्स, राइट? तो मैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से लिख दूं, दिस इज माई P4, ओके, राइट? और ये हमारा व्हाइट फॉस्फोरस, अच्छा, और सिर्फ फॉस्फोरस यानी रेड फॉस्फोरस क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसी को 2 टाइम्स लिखो, ठीक है? अलर्ट रहना, एक मतलब और लिख दीजिए, ओके? अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ओ माय गुडनेस, ये तो मूव ही नहीं हो रहा, माय बैड। अच्छा चलें कोई बात नहीं, ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहां से इसको रिमूव कर दो, ये बॉन्ड एक्चुअली इन दोनों फॉस्फोरस के दरमियान शिफ्ट होगा, जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, राइट? सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, सो दिस इज द मोनोमर एंड दिस इज द पॉलीमर, ओके? बॉन्ड कंटिन्यूएशन दिखाइए, पॉलीमर, ये आपका रेड फॉस्फोरस, ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, ओके? आगे चलते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस बोथ हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग एज यू कैन सी इन द डायग्राम्स, such as the type of structure shown by white phosphorus and red phosphorus. Explain why red phosphorus has a higher melting point than white phosphorus. Structure of P4 molecular, ठीक है, या सिंपल मॉलिक्यूलर भी कह सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ P, क्योंकि वो पॉलीमर है तो पॉलीमर तो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, तो उसका जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, राइट? जॉइंट स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आ रही हो कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि पॉलीमर है, ओके? सो
मैं जॉइंट तो है मैक्रोमोलिक्यूल, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, जॉइंट मॉलिक्यूलर, जैसे हम SiO2 के लिए लिखते हैं जॉइंट मॉलिक्यूलर, इसके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑब्वियसली इस P4 के अंदर वैंडरवाल फोर्सेस जो है वो वीक होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पर वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। सही है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, उनको ब्रेक करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप ये भी कह सकते हैं। हो, तो इसको कुछ हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आंसर को कि P4 exhibits temporary induced dipole forces। ओके, क्योंकि जब सिंपल मॉलिक्यूलर होता है तो वैन वाल फोर्सेस या टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर जॉइंट हो जाता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर हो जाता है, तो जैसे हम SiO2 में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को कोट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कोट करेंगे। इन P, that is in red phosphorus, it has lots of strong covalent bond so more energy is needed to break such bonds. Okay. Next is red phosphorus forms when white phosphorus is exposed to sunlight. डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। use this information to draw a reaction pathway diagram to show the formation of red phosphorus from white phosphorus. Okay, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, और तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एरो नीड्स टू बी डाउनवर्ड्स। ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ओके, ये P4 है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? P। सही है। अच्छा, उसने यहाँ पर P इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ P 1/4 है, क्योंकि यहाँ 4P है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। ठीक है, ओके। Next is some reactions of P4 are shown in the reaction scheme. State the oxidation number of phosphorus in P4O10. ये भी करवाया क्लास में। P4O10 फॉस्फोरस को X ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4X। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इंटू 10 करेंगे क्योंकि 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सिंस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल व्हिच इज y इक्वल्स टू 0, देन x 4x इक्वल्स टू +20, देन x इक्वल्स टू 20/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपके पास? x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5। तो आप यहाँ स्ट्रेट अवे आंसर दीजिए +5। ठीक है। Next is deduce the identity of Q and hence constructed chemical equations of reaction 1 and 2. तो अगर मैं PCl5 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो 5HCl बनेगा एंड ऑब्वियसली फॉस्फोरिक एसिड भी बनेगा, H3PO4। Now we need to make the balanced chemical equation, ये आ जाएगी। ठीक है, P4O10 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे
तो हमारे पास बनेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 6। ओके, और ये दोनों इक्वेशंस हमने क्लास में की हुई है पीरियोडिसिटी के चैप्टर में। That's a crazy structure, by the way. Triphenylphosphine is used as a type of reaction known as Wittig reaction. That's a very, very famous organic reaction, okay? But वो हमारे A1 के सिलेबस में नहीं है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। Give the empirical formula of triphenylphosphine. Okay, भाई जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। How many carbon atoms in benzene ring? 5, 6. How many carbon atoms here? 6. How many carbon atoms here? 6. So 6 plus 6 plus 6 is going to be 18. So we have 18 carbon atoms. Let's talk about hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, तो 15 hydrogen atoms आ गए यहाँ पर. And how many phosphorus we have? 1. So this is the empirical, यानी जो molecular है वही empirical है. सही है? और उन्होंने ये रिंग दी है ना, इस रिंग को उन्होंने कोट किया है और उसने कोट ये किया है कि भाई रिंग के अंदर 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। ये आपको हेल्प की उन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए। बट गाइस, आपको याद है मैंने कहा था कि एरोमेटिक कार्बन स्केलेटन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, और आप नोट करें कि वो यहाँ पर उसको एज ए क्वेश्चन यूज भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ विटिक रिएक्शन, an aldehyde reacts with a halogenoalkane to form an alkene. The conversion is shown in the following unbalanced equation. Okay, ठीक है। Compound H can be made from propanol. Stage 3 in the reaction scheme is a Wittig reaction. Okay, okay, ये विटिक रिएक्शन है जिसमें ये आपस में रिएक्शन करके एच बना रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, बाय द वे फर्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज हुआ है, और आप जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिडक्शन होगा आपके पास। ओके, व्हाट इज जी? अच्छा जी, ओके ओके, तो मैं इस जी को, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा C2G, बना रहा हूं मैं C2H5 CH2OH। अब इस G को मैं यहां लिख रहा हूं, और CH2 होल्ड C2H5 CH2OH है। अब आप नोट करें, इस OH की जगह पर एक्चुअली आयोडीन आया है, तो आपने सब्स्टिट्यूट किया है। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सही है, ऑलराइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? SN रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो बेसिकली ये CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में, फिर OH की जगह आयोडीन आया, और फिर ये दोनों मिलकर H बना रहे हैं। ओके 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 ओके, होल्ड। ओके, आगे चलते हैं। हमसे कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट अकर इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर तो मैंने आपको बता दिया रिडक्शन हो रही है, और स्टेज 2 के अंदर मैंने आपको बताया SN रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। ओके, फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ G and H इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। G का तो मैंने बता दिया आपको, C2H5 CH2OH, यानी प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है मैंने। अगर मुझे प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर लिखना है तो ऑब्वियसली
मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ C2H5 CH2OH। H का स्ट्रक्चर क्या होगा? हम्म H is basically an alkene, है ना? ओके, आप नोट कर रहे हैं? ये R एज इट इज, ये CH एज इट इज, ये R2 एज इट इज, लेकिन इस जगह ये डबल बॉन्ड रहेगा। सही है, दैट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल एरिया। तो इसका मतलब ये C2H5 एज इट इज, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, अलर्ट रहना, बहुत बहुत अलर्ट रहना। ये आपका क्या हो जाएगा, R1। ये आपका क्या हो जाएगा, R नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका हो जाएगा R2, और इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, डबल बॉन्ड में, जैसे मैंने वहां सिखाया आपको क्रैक करना। ठीक है, दोबारा से सुन लो। ये R1 है एज इट इज, और एल्डिहाइड का R1 है, अल्काइल हैलाइड का R2 है, तो हमने R2 अल्काइल हैलाइड का दिया। ठीक है, और ये भी एज इट इज रखा है हमने। ठीक है, फिर ये CH एज इट इज रखा है हमने, राइट? इसमें कोई चेंजेस नहीं की, ये CH एज इट इज है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। तो एग्जैक्टली मैं वहां पर भी यही करूंगा, इसको लेकर, इन दोनों को लेकर। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं सबसे पहले C2H5 लिखता हूं, विच इज माई R1। सही है, फिर इस एल्डिहाइड का CH आएगा, जैसे क्लास में आया था, और जाहिर सी बात है इस CH के बाद डबल बॉन्ड बनाया है एग्जामिनर ने ऊपर, मैं भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा। डबल बॉन्ड के बाद एग्जामिनर ने क्या बनाया है, CH बनाया है, ये भी CH है ना बेटा, तो मैं भी CH लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, R2, तो इसका मतलब R2 की जगह मैं क्या लूंगा, C2H5। सो दैट इज गोइंग टू बी माई स्ट्रक्चर। दैट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल एरिया, इतना आसानी से बच्चे कर नहीं सकते इसको। मुझे लगता है कि काफी काफी टेक्निकल एरिया है। दोबारा से सुने, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हाउ टू क्रैक दिस स्ट्रक्चर। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो क्राइटेरिया इस इक्वेशन के अंदर एग्जामिनर ने लिया है, वही क्राइटेरिया मैं यहाँ पर इस स्टेज 3 के लिए अप्लाई करूंगा, इस विटिक रिएक्शन के लिए अप्लाई करूंगा। क्राइटेरिया यह है कि एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसने R1 लिया, यानी उसने R1 को एज इट इज रखा। ये CH है, ये उसने CH एज इट इज रखा। ये R2 एज इट इज रखा उसने, और जाहिर सी बात है इस डबल बॉन्ड को भी एज इट इज रखा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को भी उसने एज इट इज रखा। ठीक है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के साथ उसने और क्या अटैच किया, CH अटैच किया। तो अब देखो, मैं एल्डिहाइड वाले को क्या बोलूंगा, R1, अल्काइल हैलाइड वाले को क्या बोलूंगा, R2। ये मैंने क्या रखा, R1, ये मैंने क्या रखा, R2। R1 के बाद एग्जामिनर ने CH लिया था एल्डिहाइड की वजह से, मैंने लिया। उसने फिर स्ट्रक्चर में ऊपर डबल बॉन्ड बनाया था, मैंने भी बनाया। उसने ऊपर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के साथ CH लिखा था, मैंने भी लिखा। सही है, सो दिस इज योर CH, दिस इज योर CH, और बीच में डबल बॉन्ड है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। That's a crazy question, by the way. Identify the organic products formed when compound J shown below is heated with hot concentrated acidified magnet 7 ions. ये भी करवाया हमने क्लास में। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 जब यूज किया जाता है, इसका मतलब एल्कीन needs to be involved in the reaction. Alkene needs to be involved in the reaction. सही है। अच्छा, क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ अगर CH है तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, COH। डबल बॉन्ड के साथ अगर सिर्फ C है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
और ये कीटोन में कन्वर्ट होगा. दैट वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन, इवन इन द प्रैक्टिस. ठीक है ना, ड्यूरिंग द लेक्चर्स. तो मुझे और आपको मिलकर ना इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्डेड CH आइडेंटिफाई करना है. ये रहा डबल बॉन्डेड CH, और डबल बॉन्डेड C आइडेंटिफाई करना है. ये रहा डबल बॉन्डेड C. और आप जानते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो बॉन्ड बीच में से टूट जाता है. चाहिए. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं वो आपसे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगी. तो जरा देखिए हम बनाते हैं. ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, तो ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज. एंड गाइस, ये डबल बॉन्ड के साथ CH है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. प्लस ये CH3, ये CH3, और ये कार्बन एज इट इज. सही है. और ये जो कार्बन है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में. ओके, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो कि एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं. And that's the end of, I think, question number 3. Let's move on to the next question. That is question number 4. वो कह रहे हैं compound B is liquid with a fruity smell because ये ester है, इसलिए fruity smell है. इसमें एक alkyl halide भी है. And obviously अगर मैं बहुत specific होकर बात करूं तो ये primary alkyl halide है, CH2Br. वो कह रहे हैं the reaction scheme shows how B can be made from ethanol. Okay. तो सबसे पहली बात यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, और उन्होंने ऑक्सीडेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर एक ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया है. इसका मतलब ये अल्काइल हाइड्रोकार्बन पे हैलोजन अटैच होता है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. सही. और फिर उसके बाद एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, तो ये स्टेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बना रहे हैं? एस्टर. बाकी तो सारी चीजें एस्टर हैं. Reaction 1 is an oxidation reaction. Give the reagents and conditions required for reaction 1. अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हैं, मोर देन वन स्टेप रिडक्शन ऑक्सीडेशन है. इसका मतलब मैं यूज करूंगा K2CR2O7 in the presence of acidic medium, and obviously हीट भी करूंगा मैं. सही है, यानी हीट अंडर रिफ्लक्स. ओके, क्लास में करवाया मैंने आपको. Construct an equation to represent reaction 1. Use O to represent oxygen from the oxidizing agent in this reaction. Ethanol से ethanoic acid है. Okay, very easy. This is CH3, this is CH2, this is OH. एग्जामिनर ने हमें एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट इज कन्वर्टिंग इनटू इथेनोइक एसिड. तो ये हो गया इथेनोइक एसिड. अच्छा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं आपके पास? ये CH3 तो बेटा एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है. लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3. यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1. तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे? वाटर. सही है. नाउ टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2 + 1 3. यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूं बैलेंस करने के लिए. सही है. Suggest the type of reaction that occurs in step 2. तो step 2 में मैंने कहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. देन फिर आपके पास है H2SO4 acts as a homogeneous catalyst. Why H2SO4 is described as homogeneous? Because catalyst and reactants exist in same physical state. Because H2SO4 and reactants exist in same physical state. Okay,
Oh my goodness. Okay. Now the next is reaction 2 needs to take place in the absence of water to prevent formation of compound C. ये है compound C, carboxylic acid and primary alcohol. Okay. If C is present in the reaction mixture of reaction 3, a different compound, compound D, will also form. Compound D has two identical functional groups. The infrared spectrum of D shows strong absorption at 1100 cells and 1720 centimeter inverse, but no absorption due to OH bonds. Use the data booklet to identify the functional groups present in D. Explain your answer as fully as you can. 3 marks का part है. So C हमारे पास है carboxylic acid and primary alcohol. Reaction 3 पे चलते हैं. Okay. Okay. Compound D will also form. ये है CH2OH CWH CH2OH CWH CH2OH and COOH. ये बन रहा है with this. ओके, मेक सेंस. क्यों बन रहा है? देखो, ये अल्काइल हैलाइड है, यहां से ब्रोमीन चला जाएगा और ये OH इसका आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये बन जाएगा. ठीक है. ओके. सो सी कैसे बन गया ये पता चल गया हमें. अच्छा जी, मुश्किल नहीं है. डी जो है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1720. सो भाई पहली बात तो ये कि 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. ठीक है. फिर उसी तरह से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर हमेशा कार्बोनाइल की पीक होती है, तो CO बॉन्ड प्रेजेंट होगा. सही है. ये डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं मैं. ओके. इसका मतलब ये हुआ. अच्छा, उसने कह भी दिया कि OH का कोई बॉन्ड नहीं है. ठीक है, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन OH का बॉन्ड यहाँ तो है ना. तो ये डिस्टिंग्विश करने का तरीका हो गया. तो यहाँ पर सी के लिए क्या लिखोगे? 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर OH यानी अल्कोहल का बॉन्ड होगा और 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर COOH का भी बॉन्ड है, क्योंकि C के अंदर COOH भी है. ठीक है. What else do we need to show here? अच्छा, ये जब उसने ये कह दिया आपको कि नो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH बॉन्ड, इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ना ही अल्कोहल होगा. तो ये मैं, एक मिनट, जगह कम पड़ गई है, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ. ठीक है, यहाँ रख देते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो COOH एंड OH ग्रुप इन D. ये मेंशन करेंगे आप इसमें. ठीक है, क्योंकि उसने शो किया है. हाँ, तो नो OH bond means एक मिनट, थोड़ा तमीज से लिख देते हैं. means no COOH group
and no alcohol group exist. सही है? Make sense? Okay. Next is some other reaction of C's are shown. Okay, draw the structure of E. तो guys, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख के दे सकते हैं आपको। ये हो जाएगा ONA ठीक है, देन CH2, देन OH, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं ई का, तो हम स्ट्रक्चर यही बनाएंगे जो हमने अभी बना के दिया आपको। COONA और ये होगा CH2OH। ओके। फिर उसके बाद वो पूछे सजेस्ट why sodium borohydride is not a suitable reducing agent to make F from C. Explain your answer. What is F and C? मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का मतलब मोर देन वन स्टेप रिडक्शन है। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओवर हियर इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सिर्फ वन स्टेप रिडक्शन करेगा, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड is a weak reducing agent cannot give primary alcohol on reduction of carboxylic acid. उसके बाद next, construct an equation for the reaction of this with SOCl2 to form this. Okay, इसकी इक्वेशन हम यहाँ बना के देते हैं आपको। ये है जनाब आपके पास CH2OH और ये है आपके पास CH2OH। आप इसको रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 में, ये कन्वर्ट होगा CH2Cl, फिर होगा CH2Cl, फिर होगा SO2। ठीक है, अब फिर होगा बेटा हमारे पास HCl में। ओके, नहीं HCl तो नहीं निकलेगा, 2 क्लोरीन लग गए, तो SO2 बनेगा। ओ यस, H2O बनेगा। इन दिस केस H2O बनेगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ से SO और यहाँ से O दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, SO2। सही है, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, तो ये क्लोरीन तो खत्म, यहाँ से सल्फर भी खत्म, SO भी खत्म और यहाँ से O भी खत्म। व्हाट्स लेफ्ट, एक ऑक्सीजन रह गया और यहाँ से हाइड्रोजन कितने रह गए, 2। ये एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। सो हम इसी इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। CH2OH CH2OH plus SOCl2, it is converting into CH2Cl CH2Cl plus SO2 और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर। Now the next and the last part of this question is explain why C is very soluble in water. C very soluble in water because it exhibits hydrogen bonding due to the presence of carboxylic and alcohol. So हम यहाँ लिखेंगे due to the presence of
COH, an alcoholic functional group. It exhibits hydrogen bonding. Hence, C is very soluble in water. And C is very soluble in water. Okay. Oh, that's the end of this paper. Thank you very much, guys.